Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस पेंडेमिक का असर हम सबके जीवन पर, स्वास्थ्य पर देखा गया है। खासकर बच्चों के ऊपर इसका असर रहा, जिसकी चर्चा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों का समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की तत्काल जरूरत है जिसमें बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग के आज के इस सेशन में, जिसे हम यूनिसेफ इंडिया के साथ एसोसिएशन में कर रहे हैं। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 एंड बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और उसकी देखभाल। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बहुत ही खास मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास महात्मे। डॉक्टर महात्मे इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ही इज ऑल्सो अ पद्मश्री अवार्डी एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एज वेल। डॉक्टर महात्मे, आपका जागरण डायलॉग में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। And we have with us Miss Soledad Herrero. Miss Sole is the Chief of Child Protection at UNICEF. She has 15 years of experience in the protection, humanitarian and development field, have worked with UNICEF, UNHCR and other organizations across a number of countries in Africa, Latin America, in India and in headquarters, New York. Miss Sole, welcome to the Jagan Dialogues. Namaskar. Namaskar. I'll start the conversation with you with the first question, Ms. Sole. It has been said that COVID-19 pandemic has aggravated existing vulnerabilities of children. Would you like to shed some light on how it has impacted the mental health of children in India and what kind of services were available for them during these difficult times? How can access to mental health to improve in the country and how is UNICEF supporting this area? Yes, ma'am. Thank you. COVID-19 as a pandemic has also exacerbated other silent pandemics that were happening before COVID hit us, including, of course, mental health. It is important to put things in perspective and realize that even before COVID, it is estimated that mental health issues took the burden of approximately 50% of all the diseases in the world. And India doesn't escape from this effect. There are estimations that indicate that as many as 15% of the population in India might be affected in one way or another by mental health issues. And 1 out of 4 of them, around 50 million, will be children. Working on the mental health and psychosocial well-being of the children is absolutely critical because of the stage of development that they are in their own growth. And actually, research has demonstrated that approximately half of the mental health conditions will occur before a person reaches the age of 14 years old. Now, what happened during COVID is that every single factor that contributes to the deterioration of the mental health conditions of children and families has been affected. We all have experienced sense of isolation, sense of grief, of course, unfortunately for many, and sense of uncertainty. So all these issues have also led to a global crisis when it comes to mental health. It has hit it hardest the most vulnerable and marginalized communities. Unfortunately, mental health and poverty is a two-way street. And of course, it has had very, very dire and knock-on effects on a lot of vulnerable children and communities in the case of India. Now, what we can do about it and what has been available in the country, there's been a tremendous momentum and effort to scale up mental health interventions and make them accessible, but still there is a long way to go as well. Right. There's been an expansion of counseling services and capacity building efforts, but we know that there is so much to do to make sure that mental health becomes a service accessible for everybody, especially from the preventive side. UNICEF has worked
before and especially during the pandemic very closely with a lot of key actors, including, of course, relevant ministries, Ministry of Health, Education, Ministry of Women and Child Development, with NIMHANS Institute that have played a very important role, and as well as other frontline workers like Childline, which has done excellent work during the pandemic to reach the most vulnerable children, Tata Institute of Social Services, and others, working especially on bringing at the community level some of these mental health and psychosocial well-being support services. And thanks to some of these efforts in the period of the last year and a half, we've been able to reach more than 600 children in 10 states. Great, absolutely. डॉक्टर महात्मे, मैं आपके पास आता हूं। भारत में मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के रूप में एक ठोस कानून मौजूद है। यह कानून मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या से जुड़े हुए व्यक्ति को सुलभ, सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं हासिल करने में मदद करता है। इसके अलावा रोगियों की देखभाल के मानकों को प्रभावित करता है। इसके तहत देश के हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान भी है। हालांकि जैसा कि मिस सोलेन ने बताया और इशारा किया कि इस कानून को समग्र तौर पर लागू करने और खास तौर पर बच्चों के लिए सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक निवेश की जरूरत है। संसद किस प्रकार बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी जरूरतों को लेकर अधिक विजिबिलिटी करते हैं? संसद सदस्य किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं? इसके लिए पर्याप्त निवेश लाने में मदद कर सकते हैं? ये आप हमसे बताएं जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ यानी जो डिजीजेस हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पगलापन बोलते हैं हम उसको, वही यानी मेंटल डिजीजेस है, बाकी कुछ मेंटल हेल्थ में आता नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, वी हैव 3 पार्ट्स, दैट इज वन इज कॉग्निटिव, दैट इज when the person fully realizes his or her potential, critical thinking and creative thinking, और इमोशनल यानी भावनात्मक जो हेल्थ है उसका पार्ट भी मेंटल हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं, वो है कैन द पर्सन कोप अप विथ नॉर्मल स्ट्रेस, डे टू डे लाइफ में जो भी स्ट्रेस रहता है उससे कोप अप कर सकते हैं क्या। एंड थर्ड इज बिहेवियर में कैन द पर्सन कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। सो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। और इसमें क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि देयर इज अ डिजीज एंड देयर इज अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन इस दोनों के बीच में एक डिस्ट्रेस है, वो जो डिजीज में नहीं बोल सकते हैं। काफी बार ऐसा कहते हैं, WHO कहते हैं कि डिप्रेशन या नैराश्य तो 24% है फ्रॉम 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, तो इसमें इतना बड़ा पोर्शन है। तो उसमें क्या हो रहा है कि दोज हु आर इन बिटवीन दिस पीरियड, तो उसके नीचे भी बच्चों में भी है ये, लेकिन मैं ये सिर्फ ये दे रहा हूँ। तो इसमें वो जो बच्चा है उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ, आई एम वेरी वीक एंड मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि उसको नॉलेज भी है तो अप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसे हमें समझना होगा कि ये डिस्ट्रेस सिचुएशन भी रहती है और इसके लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे है। आपने सही कहा कि जो 2017 का एक्ट है उसमें सबसे पहले ये हुआ कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। मैं जो कहता हूँ काफी बड़ा बदलाव आया हमारी सोच में, क्योंकि इसके पहले कैसा था कि सुसाइड यानी ही इज अ क्रिमिनल, ही और शी इज अ क्रिमिनल। तो अभी पता चला कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस है जो डिप्रेशन के बाद में होता है। तो ये हमने जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो हमें उसके प्रति एम्पैथी चाहिए, लेकिन इसके पहले शायद हम ये भी नहीं सोचते थे, एम्पैथी तो छोड़ो, सिंपैथी भी नहीं दे पा रहे थे और एनापैथी पे आ रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये 2017 का बहुत ही अच्छा रहा कि हम उसमें बदलाव ला पाए। एंड मेनी थिंग्स आर नीडेड। ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए इसका, यानी हेल्थ डिसऑर्डर का, डिस्ट्रेस का, और क्या करना चाहिए एज ए सांसद या एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा है। तो मुझे लगता है कि इसका कंटिन्यूअस ट्रैकिंग रहे
सांसद तो प्राइवेट मेंबर बिल भी ला सकते हैं कि सो दैट मेंटल हेल्थ कैन बी प्रायोरिटाइज्ड एंड अ सेपरेट बजट कैन बी देयर, क्योंकि एंड एजुकेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर चाहिए इसमें, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर इफ वी एजुकेट एवरी पर्सन। आपने सही कहा कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, तो एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी महात्मा गांधी जी का था नई तालीम। तो उसमें क्या होता है कि आप काम कर भी करते हैं साथ साथ में जो जीवन में लगता है, और उसके साथ साथ हम सीखते हैं इमोशनल मैनेजमेंट अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ में। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी हम साथ काम करें एज ए टीम। आज क्या है, कंपटीशन हम ज्यादा करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा लाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं अकेला अच्छा बढ़ूं ये तरीका हो रहा है, एज ए टीम हम डेवलप नहीं हो पा रहे। तो एज ए टीम कैसे करें, और मैं यदि कॉम्पिटिट करता हूं तो मेरे से करूं कि कल से मैं आज अच्छा बन रहा हूं क्या, इमोशनली स्ट्रांग हो रहा हूं क्या, इसके लिए हम काम कर सकते। अब का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और जो उसके पहले मैं बताऊंगा कि एक लोकल लेवल पे क्या कर सकता है सांसद। लोकल लेवल पे मेंटल हेल्थ रिस्पांस कमेटी बना सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, और सांसद का एक ये रहेगा कि वो फैसिलिटेटर रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हाउ टू गेट इट एग्जीक्यूटेड, उसका कार्यान्वित कैसे हो, क्योंकि वो सजेशंस देंगे लेकिन सभी मिलके निर्णय हो, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सांसद और एग्जीक्यूटिव कलेक्टर वगैरह या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं हम, वो। तो ये लोकल मेंटल हेल्थ रिस्पांस कमेटी मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। एज फार एज बजट्स इज कंसर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कितनी भी बातें करें तो आखिर पे यही सवाल आता है कि वो बजट में हम क्या कर पाए। तो मुझे लगता है कि बजट तो है ही, वो तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए संसद काम कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस क्या हम यूटिलाइज कर पाए और कैसे रेज कर पाए। जैसे मैंने अभी दिल्ली में देखा था, एक मेट्रो ट्रेन के स्टेशन का नाम कुछ सैमसंग वगैरह रखा, तो स्कूल से ऐसे रहे या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऐसे रहे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई ये टाटा है, ये लोग ये रन कर रहे हैं, एंड दे विल गिव द इम्पैक्ट, दे विल शो द इम्पैक्ट सो दैट अदर्स विल फॉलो। और बजट जो है अपने आप वो यदि बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोविड में मुझे पता चला कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बजट, यानी क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने हिसाब से जो जरूरत है मेंटल हेल्थ पे वो खर्चा कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हम ऊपर से बताते हैं कि ये करो, एंड दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर दैट लोकल डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया, क्योंकि कुछ ट्राइबल होंगे, कुछ नोमैडिक ट्राइब्स होंगे, कुछ उनके लिए अलग सिस्टम लगेगा। तो ये जो है, ये डिसेंट्रलाइजेशन जो रहेगा कि भाई आपको फंड है, आपके पास इतना, और वो आपको सोचना है कि कहाँ पे हम खर्च करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आए। ऑफ कोर्स उसका मॉनिटरिंग तो रहना ही चाहिए, ये ऐसा लगता है। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे और ऐसा भी कर सकते हैं कि आजकल जो भी इट्स अ स्किल, ये जो मैंने बोला इमोशनल मैनेजमेंट या जो भावनिक जो नियमन है उसके लिए ये स्किल है। तो यानी ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा तो गुस्सा नहीं आएगा, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी स्पेशल सेशंस रहते हैं और उसका एक तरीका है, प्रोसेस है। तो उसके वीडियोस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, यानी क्या है कि स्टोरी टेलिंग के हिसाब से हो सकता है और प्रैक्टिकली भी हो सकता है जैसे गेम्स में। तो इसके लिए क्यूआर कोड अपन यदि लगाते हैं, क्योंकि क्यूआर कोड से वो आसान होता है, 2 to 5 मिनट्स वीडियो देख सकते हैं घर में भी, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो ये सारे तरीके कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि संसद से लेकर जिला पंचायत गांव तक सभी को इसमें एक साथ आना पड़ेगा, तब हम इस समस्या के साथ बिल्कुल उसके सामने खड़े पाएंगे, लड़ पाएंगे। वन ऑफ द रीजंस ऑफ मटेरियल हेल्थ कंडीशन अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इज early exposure to gender-based and other forms of violence. This is very important. And in family, schools, and community, how these two issues are connected, and what would you recommend for keeping children safe and preventing all forms of violence against children? Yes, ma'am.
No, thank you. This is a very important question, and I think the first thing to state is that unfortunately, violence against boys and girls is highly prevalent and yet very, very invisible, which makes addressing this issue very complex. And one of the reasons why this is the case is because of these social norms, and especially those that relate to gender stereotypes that continue to be perpetuated in society. And this is why it's so important to work on social behavior change when we talk about these issues. Again, particularly when it comes to gender-based violence. There is also the misconception that a lot of violence against children remains a realm of the private domain. And we know that, for example, if we look at the statistics around sexual violence against children, more than 90% of the cases will be perpetrated within the inner circle of the child. So we need to realize that this is not a private domain and it needs an urgent action. Now, you were asking about what are the linkages with mental health. It is well proven that the social and context factors that lead to mental health disorders, so exposure to violence, to exploitation, to abuse, also to other harmful practices such as child marriage, or the unfortunate negative coping mechanisms that a lot of families have resorted to also in the context of COVID, such as child labor, have a very detrimental effect on the mental health of the children, even more so when there are cumulative effects of some of these violence and forms of exploitation and abuse. It can create psychological damage, but also in the long run, it can actually also have a long-lasting impact on the brain development, especially when this affects in critical moments of the development of the person. I think Dr. Mahatme was making reference to adolescent health and suicide rates, and this has been particularly concerning among the adolescent and young cohort, being one of the main causes of leading to death in among this young population. And this is a strong symptom of what is the mental well-being of these groups in the current time. Now, what can be done about it? I think I would maybe highlight three things. First, we need to make the invisible visible. And we need to do so first by building data and evidence. Unfortunately, both when we talk about violence as well as mental health issues, the data is very scarce, and therefore the visibility is also very limited. We need to bring also this to the public arena, and this is why we are all here as well. And we need to raise awareness and promote behavior change. We need to start talking about both violence against children as something that is also in a way a silent pandemic, and as well as mental health importance, which still remains so hidden and stigmatized as well. We need to put a lot of effort on the prevention side. No violence is justifiable, but all forms of violence is preventable. We need to work very closely with the inner circles of the children's life. So I'm talking about working on parenting practices. I'm talking about working on prevention programs with the schools, and also among communities and other inner circles. And of course, we need strong policies to make that happen. We also need strong specialized and victim-centric rehabilitation services. Those services need to be made available at the community level, at least the referral of it. We need to have frontline workers that are trained and equipped to be able to do early detection of some of these symptoms, and being able to refer them to specialized services. And I'll just conclude by highlighting two things in that regard. One is the importance of multi-sectorial approaches when we talk about preventing and addressing violence against children.
And the other one is to stress the need to bring some of these child protection services at the district level. It's only if we work closely with those families that are at higher risk and those children that are most vulnerable, where we will be able to actually address the impact of violence on boys and girls. Right. Violence against children is a very important topic, and you have highlighted all the important points how to deal with this situation. डॉक्टर महात्मे, हम आपके पास आते हैं. हमने जैसे कि सुना किस प्रकार हिंसा और गाली या एब्यूजिव बिहेवियर बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, किस प्रकार हमारे देश में सीमित डेटा और साक्ष्य उपलब्ध हैं. Solid also highlighted this issue that we have a lack of proof and data and visibility on this topic. तो आपको लगता है कि संसद सदस्य बच्चों के खिलाफ हिंसा और उनके मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को लेकर अधिक डेटा जनरेट करने और कुल मिलाकर विजिबिलिटी बढ़ाने की के बारे में कुछ कदम उठा सकते हैं? जी ये सही है. अभी ऑनरेबल मिस सोलेन जी ने कहा कि इसमें डेटा विजिबिलिटी रहना चाहिए, एंड व्हाट एवर रिसर्च वी हैव डन इज नॉट इनफ. जो भी आंकड़े हैं इसके लिए, क्योंकि अभी पॉलिसी मेकिंग में हम ये सोचते हैं कि वो एविडेंस बेस्ड हो, और वो एविडेंस ही नहीं है हमारे पास, या वो रिसर्च हुआ नहीं है, संशोधन उसके ऊपर हुआ नहीं है, तो फिर कठिनाई होती है. और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम में भी बदलाव चाहिए, क्योंकि वायलेंस में जैसे मिस सोलेन ने कहा था कि वायलेंस में सबसे ये बिलीफ है कि टीचर्स को भी लगता है कि बच्चों को मारना तो गलत बात नहीं है. क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि हमारे वक्त तो ये कहते थे कि छड़ी लागे चमचम विद्या आएगी घम घम, यानी मारने से अच्छे से आप पढ़ पाएंगे. अब वो सोच बदलना है, बिलीफ सिस्टम बदलना है, और यह बदलने के लिए ऊपर से यानी सांसद और पॉलिसी मेकर्स के तरफ से भी शुरुआत जरूरी है. और इसमें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो और इसका डाटा ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित हो जर्नल्स में या जो भी रिसेंट है. क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम तभी हम बदलाव ला पाएंगे जब इसके साथ में बाकी एविडेंसेस हो. और इसमें लेकिन मुझे लगता है कि जो एविडेंस बाकी देशों में है उसका भी हम अभी उपयोग कर सकते हैं तब तक के, और इसको विजिबिलिटी लाने के लिए हमारी जो मानसिकता है कि रिसर्च शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कैसे है, सिर्फ डेमोक्रेसी या संसद नहीं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे रहे जैसे निमंस है, बाकी है जो कम्युनिटी ओरिएंटेड मेंटल हेल्थ में बहुत बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये तरीका कंटिन्यूअस चाहिए. इसके लिए ऐसा नहीं है कि एक लॉ बना लिया या कुछ रूल्स बना लिए और वो हो गया. वी हैव टू ट्रैक इट कंटिन्यूअसली, और ये जो है ये इंस्टीट्यूशंस हम तैयार करें. तो वो इंस्टीट्यूशन यदि हम तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो पॉलिसी में बदलाव, एक तो ICMR जैसे रिसर्च है इसमें, और तीसरा इंस्टीट्यूशंस यदि हम बनाते हैं जो मेंटल हेल्थ कम्युनिटी ओरिएंटेड में यदि काम करते हैं, तो मुझे लगता है विजिबिलिटी और बढ़ेगी. एब्सोल्युटली. डॉक्टर महात्मा, एक और ऐसा मुद्दा है जिसपे शायद बात नहीं होती, और वो मुद्दा है जब हम बच्चों और परिवार के लिए मेंटल हेल्थ और अन्य जोखिम के बारे में बात करते हैं, तो वहां भी विभिन्न सामाजिक समूह यहाँ की लड़कियों और लड़कों के बीच में विभिन्न सेवाओं की पहुंच को लेकर भी असमानताएं देखने को मिलती है. हम जानते हैं हमारा संविधान सभी को समान अधिकार प्रदान करता है, हालांकि वास्तव में सामाजिक असमानताएं अभी भी मौजूद हैं. आपकी राय में सामाजिक असमानताएं को एड्रेस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि अधिकतर वंचित बच्चों की शिक्षा, हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और उन्हें नुकसान से बचाया जा सके? ये बहुत सही कहा, क्योंकि ये अपने देश में ज्यादा मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जेंडर अनइक्वालिटी नहीं है, तो उसके साथ में सोशल अनइक्वालिटी भी है. जैसे कि मैं कहूँगा कि नोमैडिक ट्राइब जो घुमंतु है,
तो वो स्कूल में नहीं जा पाते क्योंकि वो घूमते रहते हैं। उनका जो रोजी रोटी है वो जब तक कि वो घूमेंगे नहीं तब तक कि उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से है, तो उनकी पढ़ाई शिक्षा या ये नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार आपने जैसे कहा कि जेंडर इनइक्वालिटी भी है। जिसे अभी हम देखेंगे कि कोविड में क्या हुआ, ये वल्नरेबल ग्रुप जहाँ पर है वो उनके इसमें जैसे मिस सोले ने भी कहा था कि जो भी है अर्ली मैरिजेस है, वायलेंस है, ये बढ़ गए। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं ये दूर होना चाहिए, और इसको दूर करने के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? क्या हम जैसे इसमें जो भी एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी में 3 पोर्शन ले सकते हैं, लेकिन ये जैसे जिसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें लो क्वालिटी टेक्नोलॉजी है, और तीसरे इसमें नो टेक। तो इसमें क्या क्या उपयोग ला सकते हैं वो टेक्नोलॉजी का? दूसरा एक है कि कंटिन्यूअस ट्रैकिंग सिस्टम रह सकती है, और लोकल लेवल पे एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका उपयोग हम कैसे कर पाए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल एनजीओज आर कंसर्न। मैं अभी बताता हूँ कि अभी भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो घुमंतु या शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो इनको कैसे हम साथ में ले पाए, इसके लिए सेंसिटाइजेशन ऑफ जनरल पॉपुलेशन का सेंसिटाइजेशन करें, और ये जो ग्रुप्स हैं इसके लिए टारगेटेड अप्रोच रहे हर एक ग्रुप के लिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक ग्रुप बना के टारगेटेड अप्रोच कि भाई इसके लिए एनजीओ है, पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें लगता है कि वो तो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको कैसे करें। तो उसमें जब तक के पेरेंट्स पढ़े लिखे ना हो, लेकिन क्या वो पढ़ रहा है, क्या उसने होमवर्क दिया हुआ किया है, वो अपने बच्चे को पूछ सकता है, वो टीचर के साथ फोन पे बात कर सकता है, क्योंकि आज फोन तो वॉइस कॉल तो कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना भी जरूरी है। और ये असमानता के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज आर ऑलरेडी देयर, बट एज यू नो ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारा सालों साल जो हुआ है उसको बदलने के लिए समय लगेगा, लेकिन एक्टिवली प्रोएक्टिवली वी विल हैव टू वर्क ऑन दिस। Right. Ms. Sole, the next question related to schools, and it's very important because now schools are reopening in a phased manner across the country here. But there has been a long period where students have largely have to rely on online classes. So what are the implications of this, and how can schools now contribute to the mental well-being of the children? This is very important. Yes, ma'am. Yes, absolutely. No, thanks for the question. I think that the first thing to realize is that schools are a place that are much more than a place where children learn. Schooling is a platform where children learn to socialize. They learn important skills such as discipline. Also, it's a place for playing, which plays such a critical role in the brain development that we were talking before. For children, again, from the lower economic quintiles, they also can get nutrition support that is so essential as well for their growth. So a school plays a critical part in the growth and the development of any children, and therefore any individual. So depriving children from this space has had, of course, a very severe consequences that needs to be very carefully looked at. Yes. It also affected routine, the social space that are so important for the mental condition. So in India, more than 286 learners have been affected in this regard. They've been pushed, as you said, to take classes online, which has also put on the spotlight the effects of the digital divide. We know that girls have much less access to internet, a lot of times also because of misconceptions around their own security. So all this has affected the children. As you said, the schools are reopening, but there are a number of considerations that need to be taken very seriously moving forward.
First of all, is to make sure that every boy and girl return back to school. We know that every month that a child stays out of the school will make much more difficult for this child to actually return effectively into the education system, and the chances of other protection factors materialize, such as child marriage, such as child labor, is very, very high. So interventions that focus on making sure that children, and especially those more vulnerable, return to school are very extremely important. In terms of what is the role that the schools can play in mental health, this is also, of course, very important. As I said already, school environment that is inclusive and healthy per se will play a very key factor in the psychosocial well-being of a child. Now, they can also play an important role if we equip teachers and education system adequately in doing early detection when there are symptoms of more severe mental disorders or stresses that need to be attended by specialized services. For that, of course, we need adequate referral services to be put in place. And the last very important component is the essential role that they can have when it comes to prevention. In India, there's been very important programs promoted in the schools, such as the school health program or school safety programs, that also have a component of mental health, but we need to bring this much more strongly in the education curriculum. There's been some initiatives around rolling out social learning interventions and curricula that are worth to be considered moving forward to make sure that we fully capitalize on the huge potential that the education system has when it comes to promotion of the psychosocial well-being and mental health of girls and boys. Right. And in schools, as you said, that the teachers should be trained and made aware of the steps to take care of the students coming to their school. डॉक्टर महात्मे, मैं आपके पास आता हूँ. डॉक्टर महात्मे, आप अन्य क्षेत्रों के साथ साथ स्कूल में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने के प्रबल समर्थक रहे और बच्चों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति या ऐसे सेल्फ हर्टिंग की एक बिहेवियर आ जाती है, उसकी प्रवृत्ति को कम करने और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए लाइफ स्किल और सोच और इमोशनल लर्निंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी आपने वकालत की. आपको यह कितना महत्वपूर्ण लग रहा है कि स्कूल खुले रहें? आपकी राय में एक सांसद बच्चों के मेंटल वेलबींग में योगदान देने वाले स्कूलों की पूरी क्षमता को साकार करने में क्या सहायता कर सकता है और इस संबंध में किन किन पॉलिसीज को बढ़ावा दिया जा सकता है? हाँ प्रत्युष, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने सही कहा कि मेंटल वेलबींग ये जरूरी है और लाइफ स्किल्स. मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम बहुत पढ़ाते हैं, सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सभी चीजें हम बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन अब वैसा हो रहा है जैसे सर्कस में हम देखते हैं कि एक बाघ के बच्चे को अपन सिखाता है, वो सर्कस में सिखाया जाता है, फिर वो फायर रिंग में से छलांग लगाता है, स्टूल पर शांति से बैठता है, जैसे कहा वैसे करता है, लेकिन उसको यदि मैं जंगल में छोड़ दूं तो वो शिकार नहीं कर पाए. तो क्या हुआ है कि उसको बहुत पढ़ाया, वो फॉलो भी कर रहा है वो, लेकिन वह लाइफ में जो उसको स्किल्स जरूरी है वो उसको पता नहीं है. वैसे हमारे बच्चों का हो रहा है. आज हम स्कूल्स में सब कुछ सिखाते हैं, हम यानी जैसे हम ये सिखाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हम ये सिखाते हैं पूरा वर्ल्ड के बारे में, स्टार्स के बारे में, लेकिन खुद के इमोशंस के बारे में, खुद के मेंटल हेल्थ थॉट के बारे में हम सिखाते नहीं. तो इसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं. ये बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी जैसे साथ में जो काम है वो यदि हम साथ में करवाते हैं बच्चों से, तो ऐसा होता है कि वो लाइफ स्किल अपने आप आने लगता है. जैसे शिकार करना वो अपने आप सीखता है जब उसका बड़े यानी उसके माँ के साथ बाघ का बच्चा यदि साथ में घूमता है. वैसे अपने यहाँ भी होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग,
और इसके लिए टारगेटेड अप्रोच भी लेना चाहिए कि भाई ये तीनों चीजें, थिंकिंग भी सिखाना है, इमोशनल मैनेजमेंट भी हमें सिखाना है, लाइफ स्किल्स भी सिखाना है। लाइफ स्किल्स का ही पार्ट है एक्चुअली, WHO का भी कहना है। जैसे इसमें हम ये कहते हैं कि एम्पैथी सिखाना है। तो अभी ये पूरे क्षमता से साकार होने के लिए क्या करना चाहिए? अभी भी सबको मैं यदि बोलूं कि भाई ये सिखाना चाहिए, वो बोलते नहीं करिकुलम में है, करिकुलम में है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ना ही टीचर्स को है ना ही पेरेंट्स को है। क्योंकि क्या है, इसका वातावरण जो करना चाहिए, एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, वो सही नहीं लगता मुझे। देखो आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स के एग्जाम लेते हो तो वो अपने आप वो क्या करता है, मेंटल हेल्थ के लिए जो भी क्लास होगा या जो भी स्किल होगे उसका कुछ असेसमेंट नहीं होता है। तो वो चैलेंज ऐसा है उसके लिए, इट शुडंट बी पेपर या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्किल है तो उसका कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होना चाहिए। तो वो ट्रैकिंग नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसके तरफ कोई ख्याल भी नहीं देता है। आपके मार्क्स तो बाकी विषयों के लिए ही हमेशा गिने जाएंगे, देखे जाएंगे, ना कि आपका इमोशनल बैकग्राउंड कैसे है वो नहीं देखा जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि काफी बार ऐसा होता है जब मैं इंटरव्यू लूंगा तो यानी बहुत नॉलेजेबल रहेगा लेकिन वो बहुत गुस्सा आता है या टीम में काम नहीं कर सकता, तो मैं उसको ले नहीं सकता हूँ अपने टीम में। तो वैसे ही सभी जगह होना चाहिए कि ये इमोशनल का कंटिन्यूअस ट्रैकिंग तब तक के नहीं होगा, सोशल इमोशनल एक्टिविटीज का, तब तक के हम ये इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। और सांसद एज ए सांसद क्या करना चाहिए, तो ये ट्रैकिंग सिस्टम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस के लिए मदद होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि मेंटल हेल्थ इसके लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या उसकी विनिबिलिटी शुड गेट एसोसिएटेड विद दिस विनिंग इलेक्शंस, क्योंकि उसको पता है कि ना मुझे कुछ इससे इलेक्शंस में फर्क पड़ रहा, या ऐसे जब पता चलता है तो करते हैं क्योंकि उनको लगता है, लेकिन उसको तो प्रायोरिटी तो देनी पड़ती है जहां से वो इलेक्शंस के लिए चुन के से यहाँ आए। तो ये कनेक्टिविटी जब तक के हम तय नहीं कर पाएंगे तो तब तक के वो संसद मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये कनेक्टिविटी आसान है यदि हम पेरेंट्स में जागरूकता लाए, लोगों में जागरूकता लाए, तो उनको वो हम यदि सेंसिटिव करें तो ये अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, जागरूकता और अवेयरनेस ये एकमात्र हथियार है जो ये सारे जितने भी समस्याएं हम जिससे हम बात कर रहे थे, इससे हम सामना कर सकते हैं। समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महात्मे एंड मिस सोले फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड इनसाइट्स ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. I hope the session was helpful for those people who are with us here. The video of the session is available on Jagran's Facebook page, YouTube channel, Twitter handle. Please share this with your friends and family members so that they also watch such a wonderful discussion we just had. We can read about this interview in Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogues aims for news literacy and social awareness, and we'll come to you with a new topic. Once again, till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Mahatme and Ms. Sole once again. Thank you. Thank you, Jagran and UNICEF for this program, inviting me for this program. Thank you. Thank you, Dr. Mahatme. Thank you.